Good morning, student. This is Sanjay Rahi, and today we will study the menstruation cycle in human female. In the previous class, we have studied gametogenesis, oogenesis, and spermatogenesis, and this is the next topic, that is the menstruation cycle or the sexual cycle in case of the female. So, what is menstruation cycle? Basically, it can be called as the reproductive cycle of the female primate. देखिए, what happened during the menstruation? It is a 28-day cycle which ends in a periodic discharge of the blood and tissue fluid from the reproductive parts or the reproductive bodies. Generally, it remains for 3 to 5 days of each month, and it is caused due to sudden reduction of certain hormone like estrogen and progesterone. भाई 28 दिन का साइकिल है. 28 दिन के साइकिल का जो एंड फेज अगर हम बोले कि लास्ट में इट इज डिमार्केटेड बाय इट इज मार्क्ड बाय a flow of blood from the vagina. Menstruation cycle begin when a female reaches the age of puberty. Puberty कौन सी होती है? You know that when the your gonads become mature, having capability to produce ovum or the egg or the sperm, that is called as puberty. So puberty occur in case of male and female also, but in case of female, the first menstruation begin at the puberty, and that first menstruation is called as the menarche. What happened during the menstruation cycle? The menstruation cycle, the uterus endometrium prepare itself for the implantation of a fertilized egg. देखिए, ये जो sexual cycle है basically it is just only meant for it is a preparatory process for the preparation of the endometrium lining for a fertilized egg. कि भाई एग अगर फर्टिलाइज होगा तो उसको जो न्यूट्रिशन मिलना है वो कहाँ से मिलेगा? एंडोमेट्रियम लाइनिंग से. ठीक है. एंड इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर, देन व्हाट विल हैपन? ऑटोमेटिकली दीज लाइनिंग, एंडोमेट्रियम लाइनिंग, दे विल बिकम shed off from the body. So menstruation cycle repeated at an interval of 28 days, right? And one ovum is released in the middle, usually 40th day of each menstruation cycle. 40th day, however, it is a tentative time. ये जो ovulation है, it can be 1 or 2 day before or 1 or 2 day after the 40th day. तो इसमें ये changes जो है वो हो सकते हैं. See, menstruation जो cycle है, it can be divided mainly into 4 phases, right? One is the menstruation phase. You know that this is the menstruation phase. The diagram is given here कि ये जो 3 से 5 दिन, actually it is not fixed, तो ये 3 to 5 days, we can say 3 to 5 days जो हैं, the menstruation phase goes on. Menstruation phase lead to the follicular phase. This one second phase is called as the follicular phase, या इसे हम proliferative phase भी बोलते हैं. ये proliferative phase के नाम से भी जाना जाता है. Why it is called as the follicular phase? Because the follicle activity is very much higher due to the release of the follicle stimulating hormone from the pituitary gland. As you know, the follicle cells become more active and they produce more estrogen hormone. So estrogen के कारण क्या होता है? Basically formation of the endometrium lining takes place. The third phase is the ovulatory phase. Earlier I told you that it is the 14th day where ovulation occur, but it may be prior to 1 or 2 days prior to the 14th day, or it may be late, right? So but most of the cases the ovulation journey where the egg is released at the 40th day of the sexual cycle. And the last phase from 15 to 28 days, that is the excretory phase or the luteal phase, where the corpus luteum activity is very much higher, and you know that corpus luteum is responsible for the production of a hormone, that is the progesterone. Your progesterone it is also responsible for maintaining endometrium lining. So this is the major diagram. If you understand this diagram, whole of the process, it's very easy to write. Actually this diagram is very important. If you just see here, we have given 3 different levels. अगर हम
मेंस्ट्रुएशन साइकिल को समझने के लिए अगर इन 3 लेवल्स को पढ़ लेंगे तो ऑटोमेटिकली ये जो टॉपिक है हमारा तैयार हो जाता है। 3 लेवल कौन कौन से हैं? एक वन इज़ द पिट्यूटरी लेवल। देखो सेक्सुअल साइकिल in female actually it is also governed by, it is also regulated by pituitary gland। देखो sexual cycle it doesn't mean कि अगर reproductive parts are involved so but so other things are not involved, ऐसा नहीं है। that is the reason why pituitary gland is known as the master endocrine gland। it also regulate your reproductive your gonads को भी ये क्या करता है। सेकंड आ गया हमारे पास, अगर मैं बात करूं ओवरी, तो फर्स्ट लेवल क्या आ गया आपका पिट्यूटरी से रिलेटेड है। सेकंड जो लेवल है आपका वो ओवेरियन इवेंट से है कि ओवरी के अंदर क्या क्या चेंजेस आती हैं। और जो थर्ड इवेंट है दैट इज़ दी यूटेराइन इवेंट है। तो ये 3 इवेंट्स जो हैं, ये 3 चीज़ें जो हैं ये मिल के जो है वो सेक्सुअल साइकिल को कंट्रोल करती हैं। सो लेट अस स्टार्ट वन बाय वन। सो व्हाट हैपेंड, सी earlier class I have told you that there are certain gonadotropin hormone, they are released by basically pituitary gland, or the sex hormone released by the pituitary glands. So these are the follicle stimulating hormone and the luteinizing hormone, my dear student। one is the follicle and one is the LH hormone is there। तो this is the first point। अगर हम बात करें सेक्सुअल साइकिल की बात करें तो सेक्सुअल साइकिल हियर अगर आप इस चीज़ को देखें, यहाँ पे इस पॉइंट को देखें, यहाँ पे this one, this is the first phase। first phase is demarcated by a bleeding or the blood comes out from the reproductive part। so this is demarcated as a menstruation phase। and why this menstruation phase is there, यहाँ पे हमें सोचने की बात है menstruation क्यों होता है। अगर आप देखिए at the time of menstruation what happened, this follicle stimulating hormone it is at its lowest level। जो follicle stimulating hormone है ये सबसे lowest level पे जो वो रहता है। इसका रीज़न क्या है, इस पे मैं आ रहा हूँ। दूसरा, इसके अंदर अगर मैं बोलूँ, अगर ओवेरियन हार्मोन की बात करूँ, ओवेरियन हार्मोन है हमारे पास एस्ट्रोजन, तो एस्ट्रोजन की अगर मैं बात करूँ, एस्ट्रोजन जो है वो भी क्या आपका लोएस्ट लेवल पे है। तो मेंस्ट्रुएशन क्यों हो रहा है यहाँ पे, अगर आप देखो एस्ट्रोजन का लेवल क्या है, बिल्कुल लो है। प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्या है, बिल्कुल लो है। आपका फॉलिकल स्टिमुलेटिंग का लेवल क्या लो है। रीजन बिहाइंड क्या है इसका, देखो एस्ट्रोजन हार्मोन जो बेसिकली इट इज प्रोड्यूस बाय फॉलिकल सेल्स। अब यहाँ पे अगर आप देखिए देयर इज ए प्राइमरी फॉलिकल, और यहाँ फॉलिकल जो है यहाँ पे ये फॉलिकल्स की मात्रा इतनी ज़्यादा कम होती है कि ये एस्ट्रोजन को पैदा नहीं करवाता, ये बहुत कम मात्रा एस्ट्रोजन की होती है। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। नाउ व्हाई दिस फॉलिकल इज वेरी मच लो इन नेचर, बिकॉज ऑफ द लेस प्रोडक्शन ऑफ FSH। देखो ये जो फॉलिकल सेल्स है दे आर अंडर द फीडबैक ऑफ द फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ही फॉलिकल सेल को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, इसकी डिवीजन करवाता है। तो जब FSH ही ब्रेन से पैदा नहीं होगा तो क्या होगा, आपका फॉलिकल सेल नहीं बनेंगे। अगर फॉलिकल सेल नहीं बने तो क्या होगा, देयर विल बी नो estrogen, and you know that this estrogen is main sex hormone that is responsible for formation of the endometrium lining। so जब एस्ट्रोजन नहीं होगा तो यहाँ पे ये आपकी जो ये एंडोमेट्रियम लाइनिंग है दे स्टार्ट ब्रेकिंग, ये टूटने शुरू हो जाती हैं, दे शेड ऑफ, जिसके कारण जो है वो ब्लीडिंग जो है वो रहती है। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट फेज, दैट इज द मेंस्ट्रुएशन फेज। एंड व्हाट अबाउट द प्रोजेस्टेरोन, व्हाई द प्रोजेस्टेरोन लेवल इज वेरी मच लो हियर मेंस्ट्रुएशन में, दैट्स राइट, क्योंकि ये प्रोजेस्टेरोन इट इज प्रोड्यूस बाय द कॉर्पस ल्यूटियम, और यहाँ पे कोई भी कॉर्पस ल्यूटियम नहीं है, कॉर्पस ल्यूटियम भी खत्म हो चुका है, जिसके कारण प्रोजेस्टेरोन का लेवल जो वो भी जीरो है। सो मेंस्ट्रुएशन को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि व्हाई एस्ट्रोजन इज नॉट देयर। एस्ट्रोजन इज नॉट देयर because follicle cells are not there। follicle cells, why they are not proliferate, because of the lack of the follicle stimulating hormones। ठीक है, now the second phase is called as the follicular phase। देखो now this follicular phase basically it is demarcated by the increase in the level of the follicle cells। देखो धीरे धीरे जो follicles का level FSH हार्मोन जो है ये इसका लेवल जो है धीरे धीरे यहाँ पे बढ़ना शुरू करेगा। पहले बिल्कुल जीरो होगा, जो धीरे धीरे फॉलिकल सेल की जो एक्टिविटी होगी, अगर आप देखें इस पॉइंट पे देखें, फॉलिकल सेल की जैसे से मात्रा FSH हार्मोन व्हेन इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड, द सेल्स ऑफ द फॉलिकल्स दे स्टार्ट इन नंबर, इनका नंबर जो है वो इंक्रीज करता है। ये देखिए फॉलिकल सेल जो डिवाइड करेगा इसके नंबर जो है वो बढ़ता जाएगा।
as the number of this follicle cell will be increases, what will happen, the number of estrogen, sorry not, the amount of estrogen will also rise up. तो यहाँ पे एस्ट्रोजन हार्मोन जो वो भी बढ़ता जाएगा. देखिए ध्यान दें, फॉलिकल सेल बढ़ा, फॉलिकल सेल इनिशिएट द डिवीजन ऑफ द फॉलिकल सेल. फॉलिकल स्टिमुलेट हार्मोन जो है इसने फॉलिकल सेल की डिवीजन कराई, इंक्रीज द नंबर ऑफ द फॉलिकल cell. Now in turn of that, follicle will produce estrogen, and when formation of estrogen will occur, definitely again the formation of this endometrium lining. अगर आप यहाँ पे देखिए, सैरो को देखो, यहाँ पे endometrium lining की जो ग्रोथ है वो बढ़ती जाती है. सी when this follicle stimulating hormone at its peak level, अगर आप देखो जो follicle stimulating hormone जो peak level पे है, ठीक है, तो डेफिनेटली एस्ट्रोजन हार्मोन जो होगा वो भी क्या होगा, अपने पीक पे होगा. दिस एस्ट्रोजन हार्मोन it will act as a positive feedback, it will give positive feedback to the LH. ये LH को क्या करेगा, पॉजिटिव फीडबैक देगा. देखो ये LH को पॉजिटिव फीडबैक देगा, पिट्यूटरी ग्लैंड को पॉजिटिव फीडबैक देगा, जिसके कारण क्या होगा, LH की मात्रा जो वो इंक्रीज कर जाएगी. अगर आप देखें LH luteinizing hormone, and do you know that dear student, when LH and this estrogen hormone at the peak level, जब ये peak level पे होते हैं, they cause the ovulation, rupture of the Graafican follicle. ये जो luteinizing hormone है, it cause rupture of the Graafican follicle, और एक बार Graafican follicle rupture हो गई तो क्या होगा, ovulation. तो third phase is the ovulatory phase. This is the ovulatory phase and it occur at the 40th day. We can also use a term LH surge. Actually हम use करते हैं term कि when the LH level is at the peak, it calls the surge of this, it calls the breakage of this Graafican follicle to release the ovum. So my dear student, what happened when this ovum will be released automatically, तो Graafican follicle start dying. अब now देखिए, अब इस लेवल पे when ovulation occur, what happened, this peak level of LH जो है, it give negative feedback to this follicle stimulating hormone. तो follicle stimulating hormone जो है वो lowest level पे चला जाता है. And after ovulation, क्योंकि फॉलिकल सेल भी मरने शुरू हो जाती है, दे स्टार्ट डिग्रेडिंग, तो यहाँ पे एस्ट्रोजन की मात्रा भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है. एंड दिस डाइंग कॉर्पस ल्यूटियम, ये डाइंग जो ये फॉलिकल सेल्स हैं, एक्चुअली दे फॉर्म ए येलो बॉडी. नाउ वो येलो कलर का एक बॉडी बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ए कॉर्पस ल्यूटियम. माने एम्प्टी ग्राफिकन फॉलिकल जो है, ये जो एम्प्टी ग्राफिकन फॉलिकल आप देख रहे हैं, यही मरने के बाद क्या बनाएगा, व्हेन द सेल स्टार्ट डिग्रेडिंग, then it will form a yellowish body, that is called as the corpus luteum. Now corpus luteum will produce another hormone, एक दूसरा केमिकल पैदा करेंगे जिसे हम बोलेंगे प्रोजेस्टेरोन. तो ये प्रोजेस्टेरोन का लेवल जो वो बढ़ जाता है, एंड प्रोजेस्टेरोन अगेन एक्सेलरेट द फॉर्मेशन ऑफ एंडोमेट्रियम लाइनिंग. ये इस एंडोमेट्रियम लाइनिंग को फिर से क्या कर देता है, एक्सेलरेट कर देता है. और वंस ये बिकम एक्सेलरेटेड, जब ये एक्सेलरेट हो गया तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, एंडोमेट्रियम लाइनिंग एक्सेलरेट हो जाएगी, तो यह ब्लड वेसल्स की मात्रा बढ़ जाती है, कैपिलरीज का नेटवर्क बढ़ जाता है. इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, ल्यूटियल फेज बोलते हैं. दिस इज कॉल्ड एज दी ल्यूटियल फेज, क्योंकि यहाँ पे ल्यूटियल कॉर्पस ल्यूटियम की जो एक्टिविटी है, स्क्रीशन है, इट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम लाइनिंग. नाउ व्हेन दिस कॉर्पस ल्यूटियम ऑफ, बिकॉज देखो ये क्या है, बेसिकली जो ये सेल जो है वो डिग्रेड हो रहे हैं धीरे धीरे, और जब ये कॉर्पस ल्यूटियम के सेल बिल्कुल डिक्रीज हो जाती है एट द लोएस्ट लेवल, ऑटोमेटिकली आपका जो लेवल है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का, वो भी क्या होता है, फॉल आउट हो जाता है. अब देखो, नाउ देयर इज वेरी लेसर अमाउंट ऑफ द एस्ट्रोजन हार्मोन, वेर इज लेसर अमाउंट ऑफ द प्रोजेस्टेरोन, बिकॉज एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन बोथ आर रिस्पॉन्सिबल मेंटेनिंग दिस एंडोमेट्रियम लाइनिंग. ये दोनों हार्मोन जो हैं ये इस एंडोमेट्रियम लाइनिंग को मेंटेन करते हैं. एंड व्हेन दिस बोथ टू हार्मोन, जब दोनों हार्मोन की कमी होगी तो क्या होगा, ये एंडोमेट्रियम लाइनिंग जो है वो इट विल नॉट बी मेंटेन एंड इट दे स्टार्ट रप्चरिंग. तो ये टूट जाती है एंड इट विल लीड टू दी अगेन दिस मेंस्ट्रुएशन साइकिल. ये फिर से मेंस्ट्रुएशन साइकिल को लीड जो वो करती है. सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी सिंपल कंसेप्ट, दैट मेंस्ट्रुएशन, देन फॉलिकल फेज, देन ल्यूटियल फेज एंड द मेंस्ट्रुएशन फेज. So these are the different events. Menstruation phase, bleeding phase, already I have told 3 to 5 days. ठीक है. The one thing we have to know that why this menstruation phase appears. See, what will happen? अगर देखिए फर्टिलाइजेशन अगर हो जाती है, सपोज अब फर्टिलाइजेशन हो जाए, मान लो एट बिफोर द ल्यूटियल फेज, ओवुलेशन के बाद में और ल्यूटियल फेज के बीच में फर्टिलाइजेशन अगर, देन व्हाट विल जाइगोट विल बी फॉर्म, एंड दिस जाइगोट, एक बार जाइगोट बन गया तो ये कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो मेंटेन रहती है. दैट कॉर्पस ल्यूटियम
एक्चुअली इट रिमेन मेंटेन। तो प्रोजेस्टेरोन की मात्रा बनती रहती है अनटिल अनलेस जब तक कि आपका प्लेसेंटा जो है वो तैयार नहीं होता। तो यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक बार अगर फर्टिलाइजेशन हो गई तो ये जो मेंटेन रहती है, एंडोमेट्रियम लाइनिंग रिमेन मेंटेन, ये मेंटेन रहती है काफ़ी लंबे समय तक, ये मेंटेन रहती है। So these are the hormonal events that how follicle stimulating hormone actually, ये जो है follicle stimulating hormone, it is responsible for the follicular activity and follicular activity in further it will produce the estrogen hormones, है ना। तो यहाँ पे ये देखिए रखा हुआ है, this LH surge is given here, क्योंकि LH जो हार्मोन जो है that cause the rupture of this Graafian follicle to release the ovum, ठीक है। this is the secretory phase is there, see, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द मेंस्ट्रुएशन साइकिल, और टुमारो वी विल गो फर्दर पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स।